Good morning, friends. Welcome to an academy, the biggest, the largest learning platform. And myself, CA Meeta Mangal. क्या हाल है आप सबके? I hope all well. Now, first and foremost, as you all know, don't forget to use my code CA Meeta. Be it any classes, be it an academy, स्पेशल क्लासेस बी इट अन अकेडमी प्लस कोर्सेज. आप अगर अन अकेडमी स्पेशल क्लास अनलॉक कर रहे हैं या प्लस कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, एंश्योर यू यूज माय कोड. एम आई क्लियर? यूनिवर्सल कोड, एज आप लोगों ने मुझे यूनिवर्सल कोड नाम दिया है. हमारा क्या चल रहा है? सुपर मैराथन बैच चल रहा है फॉर इंडियन अटैक्स. And as you all know me, myself CA Meeta Mangal, and I'm here to teach people in the attacks at CA final levels. This is Unacademy's channel's Telegram channel link. Now, benefits of Unacademy, many benefits of Unacademy. First and foremost benefit is 1500 per month. That's it. और क्या भगवान चाहिए? नहीं मिलता यार, फाइनल्स इतना कम में नहीं मिलता है. And that not कि एक बार देख लिया बात खत्म. You can keep on viewing it. Multiple mini quiz and multiple mega quiz sessions. Ability to download PDF with annotations. Live class on the spot, doubt clarification, and offline backup of all the classes. Freedom to study from any educators of your choice. Single payment will give access to all subjects, all teachers, and all type of classes. Unlimited number of views. Participate in live polls and end-to-end coverage. ये सारे benefits कब मिलेंगे? When you install the app, Unacademy Learning app, and after installing the app, go for CA finals, select your goals, select plus course and then go for subscription. और जब मैं subscription बोलती हूँ, you know, Unacademy has offered you 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months subscription. So if you're writing in May 21, you should go for 6 months. If you're writing in November 21, you should go for 12 months. If you're writing for after November 21, you should go for 24 months subscription. Getting a point? पर ये आपको कब मिलेगा? When you use my code CA Meeta. Am I clear? Am I clear? Get a point? So do like it, do share it, do subscribe the channel, because the moment you subscribe it, you will come to know all the notifications when what is going to happen by what educator. And don't forget to use my code CA Meeta. Am I clear? And again, this is the link of CA finals where we have created, our group has created this, where you will be getting everything under one roof, not only of my subjects, of all subjects, be ICR resources, be YouTube video lectures, be special classes, be plus courses. Plus courses you won't be able to view it because plus courses वही view कर सकते हैं जिसने subscription लेके रखा है. Am I clear? Am I clear? And this is a team of CA finals. And first, last, and not the least, CA Unacademy have come with a new batch, Yodha batch for CA Industrials, which has already started from 14 December for May 2021 students. For May 2021 students. So boss, if your youngers or your senior ones or dear ones are writing CA intern May 21, ask them to subscribe or for take this. This will help them a lot. But ensure that they use my code CA Meeta. Am I clear? Okay. अब हमारा क्या चल रहा है? We are already done with time of supply of goods. हमने time of supply चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने सेक्शन 12 खत्म कर दिया था, time of supply of goods खत्म कर दिया था. अब हमें सेक्शन 13 करना है, time of supply of services. And honestly, जितने डेप्थ में हम 12 में चले गए, इसलिए 13 will become a just that word. Am I clear? Almost same है. Almost same है. So we already done with section 12. Let's come with section 13. Section 13 क्या बोलता है? अगर आपको time of supply of services निकालना है तो you have to come to section 13. 13 subsection 1 ऐसा बोलता है. मतलब 13 subsection 2 क्या बोलता है समझना. 13(2) के अंदर 3 कैटेगरी है. पहली बात, if FCM is applicable. FCM मतलब section 13 subsection 2 कब लगेगा? When FCM is applicable, that means when supplier has to pay tax to the government. Supplier will collect from recipient and pay tax to government. Am I clear? तो 13(2) के अंदर you have 13(2)A, you have 13(2)B,
and you have 13(2)(c). You have three cases. First, if 13(2)(a) कब applicable होगा? If invoice is issued within the given time period, as per section 31, इनवॉइस का जो टाइम पीरियड देख के रखा है कि सर्विस के 30 डेज के अंदर या इन एक्सेप्शन केसेस में 45 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और डेट ऑफ पेमेंट हमें पता है, हम पढ़ क्या है, बुक्स में एंट्री या बैंक में क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, बुक्स में एंट्री या बैंक में क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर इज योर डेट ऑफ पेमेंट। एम आई वेरी क्लियर? ये बाय डिफॉल्ट है, हम सिर्फ सेक्शन 14 में जाके पढ़ेंगे जहां पे डेट ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन चेंज हो सकती है। प्रोबेबली लेट्स टेक 10 मिनट्स में पढ़ते हैं। Am I clear? तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इफ यू हैव इशूड टाइमली द इनवॉइस। Am I clear? अगर तो 13(2)(a) लगेगा। इफ इनवॉइस इज not issued within the given time period, आपने जितने टाइम पीरियड बोला था, आपको 30 डेज का टाइम दिया था, आपने 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं किया, इन दैट केस डेट ऑफ क्या लैंग्वेज यूज करी लोग ने, लैंग्वेज देखो इनकी, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब आज अगर सर्विस हो गई थी तो आज के 30 दिन में अगर आप इनवॉइस इशू कर देते तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हो जाता। अगर आपने 30 दिन या इन सम एक्सेप्शन केसेस में 45 डेज, अगर आपने विद इन दैट गिवन टाइम पीरियड अगर आपने इनवॉइस रेज नहीं किया है, देन इन दैट केस आपको जिस दिन सर्विस कंप्लीट हो जाएगी वो दिन या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर माना जाएगा। एम आई क्लियर? एंड 13(2)(c) क्या बोलता है, जब ऊपर के 13(2)(a) एंड 13(2)(b) दोनों ही एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपके पास डेट ऑफ इनवॉइस नहीं है, डेट ऑफ पेमेंट नहीं है, इन दैट केस time of supply shall be the date on which recipient shows receipt of service in the books of accounts. I hope you are getting my point. समझना, अगर आपके ऊपर 13(2)(a) एंड 13(2)(b) एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि या तो अगर इनवॉइस की डेट नहीं है या पेमेंट की डेट नहीं है। मैं क्लियर? या तो इनवॉइस की डेट नहीं है या तो पेमेंट की डेट नहीं है, तो 13(2)(c) एप्लीकेबल होगा। और 13(2)(c) क्या बोलता है, जिस दिन रिसिपेंट अपनी बुक्स में सर्विस रिसीव की एंट्री करता है, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑन व्हिच रिसिपेंट शोज रिसिप्ट ऑफ सर्विस। If A and B not applicable, so date of entry of service in the books of recipient will be the time of supply. Am I clear? क्या लिखा है? In this situation, the time of supply shall be the date on which the recipient shows the receipt of service in his books of accounts. Am I clear? Is 13(2) clear? 13(2) कब लगेगा? जब FCM लगेगा, जिस दिन सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ता है तब 13(2) लगता है। अगर RCM थी, पर डायग्राम देख लो, 13(2) का डायग्राम देख लो। Is invoice issued within the time? Yes, no. If yes, date of issue of invoice or date of payment
इन डेट ऑफ पेमेंट का मतलब बुक्स में एंट्री या बैंक में क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर. नो, आपने टाइमली इनवॉइस इशू नहीं किया. द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. और अगर इफ नॉट अबाउट दो मेथड्स एप्लीकेबल नहीं हो रहे तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपेंट. 13(3) कब लगता है? जब RCM लगता है. RCM का मतलब when recipient will directly pay tax to the government. RCM का मतलब when recipient will directly pay tax to the government, तब RCM एप्लीकेबल होता है. उसमें क्या बोला है? सिंपल डायग्राम पे आ जाओ. डेट ऑन विच, सी अब जब रिसिपेंट को टैक्स पे करना है, तो रिसिपेंट के बिहाफ पे डेट ऑफ पेमेंट देखा जाता है. तो उसके बुक्स में पेमेंट का मतलब उसके बुक्स में डेबिट की एंट्री या उसके बैंक में डेबिट की एंट्री. डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट. और डेट ऑफ डेबिट एंट्री, वो जब अपने बुक्स में पेमेंट की एंट्री करता है, पेमेंट की एंट्री करता है. वो जब अपने बुक्स में पेमेंट की एंट्री करता है या बैंक में डेबिट की एंट्री होती है, दैट और 61th day from the date of invoice. 61th day from the date of invoice. हमने गुड्स के केस में 31 पढ़ा है, सर्विस के केस में 61th day from the date of invoice, whichever is earlier. Am I clear? Whichever is earlier. I hope you are getting my point. And in case अगर आपके पास ऊपर की डिटेल्स नहीं है, if above details are not available, in that case date of entry of service in the books of accounts of the recipient will be the time of supply. Am I very clear? कोई इशू यहाँ तक? I hope there is no issue. In case you have any issue, next lecture में you can ask me that kind of issues. Am I clear? अब अज्यूम करो आप सर्विसेज किससे ले रहे हो? एसोसिएटेड एंटरप्राइज, मतलब एंड दैट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. XYZ US, XYZ इंडिया. आपने सर्विस किससे ली? USA वाले से, जो आपकी कंपनी है. तो आप दोनों को क्या कहा जाएगा? एसोसिएटेड एंटरप्राइज. और क्योंकि आपने इंपोर्ट करवाया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, RCM लगेगा. इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? पेमेंट की डेट ऑफ पेमेंट या बुक्स में एंट्री. सी जब ये रिलेटेड पार्टी हो गई तो हो सकता है पेमेंट ना करे, बुक एंट्री घुमा दे, तो बुक एंट्री इज इक्विवेलेंट टू पेमेंट हो गई. तो एक्चुअल पेमेंट या बुक एंट्री विच एवर इज अर्लियर. एक्चुअल पेमेंट और बुक एंट्री विच एवर इज अर्लियर. क्लियर? 13(3) clear? 13(2) and 13(3) is important when it comes to service. Why? Because 13(4), 13(5) and 13(6) is exactly same as 12(4), 12(5) and 12(6). तो 12(4) हमने क्या पढ़ा था? वाउचर पढ़ा था. 12(4) में क्या पढ़ा था? अगर वाउचर इशू करते वक्त इट इज आइडेंटिफाइबल कि क्या रिडीम होने वाला है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. और अगर वाउचर इशू करते वक्त ये पता नहीं है कि क्या रिडीम होने वाला है, तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. एम आई क्लियर? सेम रेसिडुअल के लिए हमने वहां पे क्या पढ़ा था? रेसिडुअल केसेस में जब तक मतलब आपका 13(2), 13(3), 13(4) आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, 13(5) आ जाओ. 13(5) के केस में अगर आप रजिस्टर्ड हो, the date on which periodic return is required to be filed, मतलब due date of filing the return will be the time of supply. And if you are not registered, तो आपको रिटर्न फाइल करने की बात ही नहीं आती है. तो फिर जब आपको GST पे करने का हम बोलेंगे, that will be the time of supply. हम exactly 12(5) में डेप्थ में पढ़ के आ चुके हैं. एंड 13(6) इंटरेस्ट की बात है. इंटरेस्ट, लेट फी एक्सेट्रा विल बी अ पार्ट ऑफ वैल्यू. हम वैल्यूएशन चैप्टर में सेक्शन 15 में पढ़ के आ चुके हैं, 15(2)D में पढ़ के आ चुके हैं कि इंटरेस्ट पे GST लगेगा. पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जिस दिन वो इंटरेस्ट मिलेगा, जिस दिन वो लेट फी मिलेगी, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. एम आई क्लियर? So we are done with section 12. We are done with section 13. Now let's come to last section, section 14. See, मैंने बोला था
नवंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को, नवंबर 2020 स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि हमारे एग्जाम में फाइनल्स में 12 एंड 13 का एज सच इतना इंपॉर्टेंस टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर को लेके नहीं है। रीजन है क्योंकि सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 इज इन सीए इंटर ऑल्सो, बट सेक्शन 14 इज नॉट इन सीए इंटर। तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई पर से पे क्वेश्चन पूछना है, टाइम ऑफ सप्लाई पर से पे क्वेश्चन पूछना है, देन दे विल आस्क ऑन सेक्शन 14 और नवंबर 2020 में आया भी। मतलब तो व्हाट इज सेक्शन 14? वेरी सिंपल, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया है। और मेरा है ना, अंडरस्टैंड करो, मुझे कंफ्यूजन क्या है कि मेरे पे ओल्ड रेट लगेगा कि मेरे पे न्यू रेट लगेगा। तो फॉर एग्जांपल 27 दिसंबर 2020 को रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया, 5% से सपोज 12% हो गया, अज्यूम करो। और ऑल माई 3 इवेंट्स, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, मतलब मेरे तीनों की तीनों चीजें 27 दिसंबर के पहले हो चुकी थी। तो इस केस में सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि मुझे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, 5% लगेगा। और अगर मैं तीनों की तीनों चीज, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, तीनों की तीनों आफ्टर 27 दिसंबर हुआ है, तीनों की तीनों आफ्टर 27 दिसंबर हुआ है, तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो भी 14% या 12%, तो भी मुझे कोई, तो भी मेरे पे सेक्शन 14 नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आई हैव डन ऑल द 3 इवेंट्स आफ्टर द अमेंडमेंट। बट प्रॉब्लम कब आता है? जब मैं ऑल द 3 इवेंट्स मेरे हुए नहीं कंप्लीट और चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो गया। ऑल द 3 इवेंट्स मेरे कंप्लीट नहीं हुए एंड चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो गया। तो अब मुझे कंफ्यूजन है कि मुझ पे ओल्ड रेट लगेगा कि मुझ पे न्यू रेट लगेगा। तो उसके लिए हमें सेक्शन 14 में आना पड़ता है। अब सेक्शन 14 क्या बोलता है? सेक्शन 14 सेज मेजॉरिटी विंस, but the time of supply will either depend, ऐसा बोलना चाहिए, depend, will either be बोलते, will either be डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। समझो क्या मतलब इस लाइन का। मैंने क्या बोला? मेजॉरिटी विंस। मेजॉरिटी का मतलब 3 इवेंट है, दो ओल्ड है, 2 पहले हो गई तो ओल्ड रेट, 2 बाद में हुई तो न्यू रेट। तो यहाँ पे क्या कहना है? डेट ऑफ प्रोविजन मतलब आपने कब सप्लाई किया, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, ये 3 इवेंट है। ये हमारा सिर्फ बेस, मतलब ये हमें मेजॉरिटी के लिए हेल्प कर रहा है, बट ये हमें सिर्फ मेजॉरिटी के लिए हेल्प करेगा। बट मेरा टाइम ऑफ सप्लाई विल आइदर डिपेंड अपॉन डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। मतलब क्या है? सपोज लेट टेक ऑल द परमिशन बिफोर, इसको बेस बना के बिफोर आफ्टर बिफोर के सारे परमिशन कॉम्बिनेशन हो गए। अब समझना, मुझे पता है फर्स्ट केस में मेजॉरिटी किसकी? बिफोर की। मेजॉरिटी किसकी? बिफोर की। तो मेरा रेट, और बिफोर में क्या बिफोर है? फिर डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर है, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस। समझा क्या ये पॉइंट? समझा कि नहीं समझा? मेजॉरिटी किसकी? बिफोर की। तो ना बिफोर विल, जो बिफोर डेट है वो लगेगा, पर टाइम ऑफ सप्लाई किस दिन का होगा? इनवॉइस की डेट का। सेकेंड केस में मुझे पता है मेजॉरिटी किसकी है? बिफोर की। पर अब इनवॉइस बिफोर है कि पेमेंट बिफोर है? पेमेंट बिफोर है, तो डेट ऑफ पेमेंट। थर्ड केस में मेजॉरिटी किसकी है? आफ्टर की। मेजॉरिटी किसकी? आफ्टर की। पर इनवॉइस आफ्टर है कि पेमेंट आफ्टर है? दोनों ही आफ्टर है, तो इस केस में डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एंड फोर्थ केस में
सेक्शन 14 विल नॉट बी एप्लीकेबल, क्योंकि तीनों की तीनों इवेंट पहले ही हो गए। अगर आफ्टर की बात करें, डेट ऑफ प्रोविजन, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर। अब फिफ्थ केस की बात करते हैं। मेजॉरिटी किसकी है? आफ्टर की, और उसमें इनवॉइस आफ्टर की, पेमेंट आफ्टर है, इनवॉइस आफ्टर है, तो मेरा डेट ऑफ इनवॉइस विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई, और जिस दिन का टाइम ऑफ सप्लाई आता है उस दिन का रेट लिया जाता है। ये हमने वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ा था। सिक्स केस में मेजॉरिटी किसकी है? आफ्टर की है। इनवॉइस आफ्टर की, पेमेंट आफ्टर, पेमेंट द डेट ऑफ पेमेंट। सेवन केस में मेजॉरिटी किसकी है? बिफोर की, पर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही बिफोर है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एंड लास्ट केस में तीनों ही आफ्टर है, तो सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा, तो सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब अभी तक हमने डेट ऑफ पेमेंट के में डेफिनेशन सेम है, बुक्स में एंट्री और बैंक में क्रेडिट, whichever is earlier, right? But now there's one exception to this, उस exception में date of payment will be date of credit in bank। समझो कब, समझना कब? अज्यूम करो 27/12/2020 को 5% का रेट 12% का हो गया, रेट बढ़ गया, और आपने बुक्स में से कोई, यहाँ पे लोग चोरी करें, आपने बुक्स में एंट्री कब दिखाई? 24 दिसंबर को, और बैंक में पेमेंट कब आया? 5 जनवरी 2021। समझो क्या हो रहा है, समझो। जैसे ही 27 को मैंने देखा अमेंडमेंट आ गया, टैक्स रेट बढ़ गया, मैंने क्लाइंट को बोला कि मैं बुक में एंट्री दिखा देता हूं, आप मुझे, इनफैक्ट 27 को भी पेमेंट नहीं आया, बाद में आया पेमेंट, तो आप मुझे पेमेंट दे दो, मैं बुक में एंट्री दिखा दूंगा, तो बुक में एंट्री दिखा दूंगा पहले की, तो ओल्ड रेट मिल जाएगा। तो यार डिपार्टमेंट बोलता है नहीं मैडम, अगर आपके पास 24 को पेमेंट आ गया था बाय बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, बाय बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट चेक आया होगा, चलो मान लिया आपने चेक जमा नहीं किया, आपको लगा मैं इकट्ठे चेक जमा करूंगा, पर मैंने जैसे अमेंडमेंट आया, इस अमेंडमेंट से मैं आपको 4 वर्किंग डे देता हूं, वर्किंग डे 4 वर्किंग डे दे रहा था, 4 वर्किंग डेज, 27 को पता चला कि चेंज हो गया है, 28, 29, 30, 31, अगर उसमें सपोज कोई छुट्टी है तो वो भी हटा दो, सपोज सेकेंड तक 4 वर्किंग डे होता है, सेकेंड तक बैंक में पैसा आ जाना चाहिए था, सेकेंड तक बैंक में पैसा आ जाना चाहिए था, सेकेंड तक भी बैंक में पैसा नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ये जो चेक आया है ना, आपको बाद में आया है, आपने जस्ट ओल्ड रेट लेने के लिए बुक में एंट्री घुमा दी। इनका कहना है आई विल गिव 4 वर्किंग डेज, अज्यूम करो कोई छुट्टी नहीं है, तो 28, 29, 30, 31, अज्यूम करो 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक अगर आपके बैंक में पैसा आ गया, तो मैं मान लूंगा कि आपको चेक पहले ही आ गया था। आई एम गिविंग यू 4 ग्रेस डेज, मैं आपको 4 ग्रेस दिन दे रहा हूं चेक जमा करके क्लियर करने के लिए, दैट टू 4 वर्किंग डे दे रहा हूं। 31 दिसंबर तक अगर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता, मेरा डेफिनेशन वही रहता, बुक्स में एंट्री, बैंक में क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, मेरा डेफिनेशन वही रहता, और बुक में एंट्री 24 को भी,
24/12 बैंक में एंट्री अगर 31st तक आ जाती तो मैं आपको 24th का दे देता और आपको ओल्ड रेट मिल जाता, पर क्योंकि आपका पैसा 31st तक नहीं आया, दैट मीन्स इस केस में आपको मैं नॉर्मल डेफिनेशन अप्लाई नहीं करूंगा। आपके लिए डेट ऑफ पेमेंट विल बी द डेट जिसमें बैंक में क्रेडिट हुआ है। बैंक में क्रेडिट कब हुआ है? 5 जनवरी को हुआ है। अब जाके देखो मेजॉरिटी किसकी है, ओल्ड की है कि न्यू की है। समझ में आया ये प्रोविजन? समझ में आया ये प्रोविजन? बेसिकली यहाँ पे लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे? चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। क्या करने की कोशिश कर रहे थे? चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, और वो चोरी के कारण उन्होंने प्रोविजन बनाया। Am I clear? So this completes your time of supply of chapter section 12, section 13 and section 14 completely. कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में, यू कैन आस्क मी इन द लेटर सेशन बिकॉज दिस इज प्रीमियर सेशन। ओके, लाइव नहीं है, हमने प्रीमियर किया है इसे। ओके, बट विल मीट अगेन on 31st with live session with valuation chapter and your doubts. Okay, thank you. And last but not the least, don't forget to use my code CAMEETA live Unacademy plus course on Academy special classes. Okay, thank you very much. Take care. Bye bye. Enjoy your studies.